Hi folks, welcome to your channel Textbook MBA. This is our very first lecture where we're going to talk about a roadmap for your logical and abstract reasoning. Logical abstract reasoning कितना important है ये मुझे बोलने की जरूरत है नहीं. One of the most important parts of your entire Maharashtra CET paper. Why? Let's talk about that. Here's the format of the test. जो sections है हमारे लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मिलाकर 75 एंड 2500 क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं आपके and the other 100 questions are coming from VARC and Quant. Yes, so what does this mean? Logical reasoning, abstract reasoning, equally important compared to both Quant and VARC मिलाकर together, right? अगर आपका टारगेट है JBIMS and top B schools that look for 99.9 percentile and above, that means you are aiming somewhere around 150 to 160 marks. और ये easily कहां से आ सकता है? This bigger chunk from this can come from here, because बहुत सारे क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के ऐसे होते हैं जो आप देख के फटाफट आंसर निकाल सकते हो, राइट? एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन अ टेस्ट लाइक सीईटी, कि आप किसी क्वेश्चन को देखे फटाफट सॉल्व करे, आंसर निकले, सेलेक्ट करे, आगे बढ़े. You will not have the time to sit and read the entire question, analyze the question, understand what's going on, do some trial and error and check if it works. No, this is not CAT, this is not ZAT, जहां पे आपको very minimum क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं. नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव स्कोर्स नहीं है, मतलब धमाधम उड़ाना है. दिस इज लाइक सुपर ओवर, दिस इज लाइक फ्री हिट. हर बॉल पे घुमाओ, अगर बाउंड्री के पार गई तो छक्का, अगर नहीं गई तो आउट है. वैसा वाला सिचुएशन है यहाँ पर, राइट? दिस इज प्रॉपरली अ डू और डाई सिचुएशन फॉर अस. एक ओवर 6 बॉल, एग्जैक्टली 36 टू विन वाला सिचुएशन है ना. आंखें बंद करो और घुमाओ, दैट्स द सिनेरियो. एंड दैट one place where that is possible is logical reasoning and abstract reasoning, where people get maximum marks from. तो अब ये जो maximum marks का फंडा है ये कैसा है? What are the topics that get tested over the years? जितने भी papers आए उनको हमने analyze करा है, and in logical reasoning these are the important topics that get asked. We have questions from input, output, arrangements, distribution, blood relations, puzzles, ranking, coding, decoding, directions, data sufficiency, syllogisms, critical reasoning. Within these puzzles itself, you have questions based on series, questions based on odd one out, questions based on analogies. ये सब इसी में आ जाता है, right? Number series, letter series, ये सब कुछ. Apart from that, in abstract reasoning is completely figure based. तो आपको सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको मिसिंग फिगर ढूंढना है. सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको नेक्स्ट फिगर ढूंढना है कि ये सीरीज के बाद का अगला फिगर कौन सा होगा. इसी में फिगर बेस्ड एनालॉजीज, फिगर बेस्ड ऑड वन आउट भी पूछा जाता है. सो दिस इज द ओवरऑल syllabus of logical reasoning, abstract reasoning. कहीं पर भी officially नहीं दिया हुआ है ये, but this is from a trend analysis that we have done, I have done from all the previous year questions that we have seen so far. ठीक है? Now let's talk about in detail कि ये सारे हैं क्या, right? Let's talk about input output. तो input output का question ऐसा होता है where you have an input statement given to you जहां पे कुछ characters होते हैं, right? अब ये हर स्टेप पर या तो रीअरेंज होते हैं या वैल्यूज चेंज होते हैं. हमें बेसिकली वो आइडेंटिफाई करना है कि हर स्टेप में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या वैल्यूज रीअरेंज हो रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वोवेल्स पहले, कॉन्सोनेंट्स बाद में, वैसा वाला सिचुएशन है. ये आइडेंटिफाई करना होता है हमें. एंड देन ये तो सैंपल होता है, दिस इज अ सैंपल. ये जो आखिरी स्टेप आपका होता है वो होता है आपका फाइनल आउटपुट. अब आपको दिया जाता है एक और इनपुट, ये सैंपल के बेसिस पे एक और इनपुट दिया जाता है. आपको पहले इसको एनालाइज करना है, फिर ये जो इनपुट है इसको सेम स्टेप्स लगाकर चेक करने. और क्वेश्चंस भी कैसे, डायरेक्ट आउटपुट नहीं पूछ रहा. क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, इफ ब्ला 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 इज द थर्ड स्टेप देन हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू रीच ऑन द फाइनल आउटपुट. या सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस गेट आस्क्ड इन इनपुट आउटपुट. टाइम कंज्यूमिंग, यस, बट वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ द एंटायर पैटर्न, पूरा पैटर्न अगर आपको होल्ड हो जाए तो फिर आप धड़ 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 क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली सेट बेस्ड में आते हैं, इंडिविजुअल बहुत रेयर दिखता है. सेट बेस्ड में है, मतलब एक सैंपल के बेसिस पर ही आपको 3 4 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है? नेक्स्ट इज अरेंजमेंट. अरेंजमेंट में आपका लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट.
काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल गेट हियर। सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगा, वर्टिकल अरेंजमेंट मिल जाएगा, एक के ऊपर एक वाला, या कोई क्यू में खड़े है उसका अरेंजमेंट मिल जाएगा, या सर्कुलर अरेंजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। देन वी गो टू अगेन अरेंजमेंट्स में भी हमने देखे हैं कि सेट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, इंडिविजुअल भी आते हैं, है ना। तो आई राइट एस फॉर सेट एंड आई फॉर इंडिविजुअल, दोनों आते हैं, एस भी आता है आई भी आता है इसमें। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट क्वेश्चंस फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आप सिर्फ एक लाइन में अरेंज नहीं कर रहे बट आप दोनों रो और कॉलम वाइज अरेंज कर रहे हो, व्हिच इज यू आर मेकिंग अ टेबल आउट ऑफ इट, अ ग्रिड, अ मैट्रिक्स आउट ऑफ इट, राइट। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग फॉर पीपल हु आर नॉट यूज्ड टू इट। जितना ज्यादा आप इनको प्रैक्टिस करोगे, बाकियों को दिखने में ये लग रहा है कि यार इतना लेंथी है, बहुत टाइम चला जाएगा, बट फॉर वंस हु आर एबल टू टैकल दिस, राइट, दिस बिकम्स अ वेरी इजी टास्क फॉर देम। दिस यूजुअली सेट बेस्ड, क्योंकि बहुत टाइम जाता है इसको सॉल्व करने में, तो इतना टाइम लगाकर अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और एक सेट सॉल्व कर रहे हो और आपको एक ही क्वेश्चन मिला, तो फिर ये नाइंसाफी हो जाती है। सो यूजुअली हैव 4 to 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ सेट्स, और हमने देखा है कई पेपर्स में कि ऐसे सेट 4-5 आ जाते हैं। मतलब आई एम लुकिंग एट 20-25 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन अलोन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इनफैक्ट सारे कॉन्सेप्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, बट ये हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, रिसेंट वाले में देखा है बहुत ज्यादा पूछा गया था। देन वी हैव ब्लड रिलेशंस, जहां पे रिलेशन बिटवीन मल्टीपल पीपल आर गिवन टू यू एंड देन क्वेश्चंस आर आस्क्ड। इसमें दोनों टाइप है, सेट टाइप भी है, इंडिविजुअल टाइप भी है। सेट टाइप थोड़े से लेंथी होते हैं सॉल्व करके फिगर आउट करने में, इंडिविजुअल वाले खत्म, राइट। Then we have puzzles. Puzzles में you get all kinds of puzzles. You get puzzles based on word series. You get puzzles based on number series. जहाँ पे आपको numbers को रख के कुछ करना होता है। जैसे यहाँ पे word का अगर आप देखोगे तो they're saying if all the vowels of the word aeriferous are replaced by its succeeding letter according to English alphabet and all the consonants are replaced with their previous letter according to English alphabet, then all the letters are arranged in the alphabetical order. Then how many letters are there between the third letter from the left and the second letter from the right in the English alphabetic series? पहली बार देखने वाले को हार्ट अटैक, मिनी एकदम माइन्यूट सा हार्ट अटैक आ जाना है ये देख के कि भाई पूछ क्या रहे हैं। बट फॉर अस, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट अ सीजन प्लेयर बाय द एंड ऑफ दीज 50 days, हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे निपटाना है, राइट। देन यू हैव नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो, ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ पजल्स आर इन नंबर बेस्ड आल्सो, जहां पे आपको एक नंबर दिया हुआ है और अब ये बोल रहे हैं कि 2 is multiplied by the digits which is less than 5 and 1 is subtracted from to the digits which is greater than 4, then all the digits are arranged in ascending order from left to right. Now which of the following digit is exactly in the middle? क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में 75 क्वेश्चंस है। आर यू गेटिंग द 75 क्वेश्चंस इन लॉजिकल रीजनिंग? आपको सब टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में दिख जाए, एनी पेपर दैट यू पिक अप, हर टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां पे पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये है पजल्स। इसके बाद आता है रैंकिंग। रैंकिंग में दोनों टाइप के क्वेश्चंस है, क्यू वाला रैंकिंग, पोजीशन बेस्ड रैंकिंग भी है, इनइक्वालिटी बेस्ड रैंकिंग भी है। तो ये एक एग्जांपल है इनइक्वालिटी बेस्ड रैंकिंग का, जहां पे a इज लेस देन इक्वल टू c, k इज ग्रेटर देन a, e इज ग्रेटर देन g, e इज ग्रेटर देन g व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड k बोथ। तो अब ये हमसे दो कंक्लूजन दिए हैं कि e इज ग्रेटर देन a, e इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, राइट। इनइक्वालिटी बेस्ड, इनइक्वालिटी में कोडेड इनइक्वालिटी भी आते हैं इन अ फ्यू पेपर्स वी हैव सीन। इसके अलावा यू हैव प्रॉपर कोडिंग डिकोडिंग, जहां पे यू नो समथिंग इज ट्रांसलेटेड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज या कोई कोड लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है और हमें वापस उसी लॉजिक को अप्लाई करके दूसरा कुछ ट्रांसलेट करना होता है, राइट। सो हियर इज वन एग्जांपल ऑफ दिस। इसके अलावा देन यू हैव डायरेक्शंस, वेरी सिंपल, मूविंग ऑब्जेक्ट है, मैप बनाओ, ट्रैक करो, आइडेंटिफाई करो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, किस डायरेक्शन में है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितना डिस्टेंस उसने टोटल ट्रैवल करा है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसके अलावा देन यू हैव डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं, क्वांट बेस्ड भी देखे हैं एंड लॉजिकल बेस्ड भी देखे हैं, है ना, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड भी देखे हैं। तो ये एक लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन का एग्जांपल है जहां पर आपको सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, 6 persons ABCD facing north, who among the following sits at the right end, और हमें जो कंडीशंस यूजुअली दिए जाते हैं वो हमें दिए हुए हैं एज डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है क्या सिर्फ पहले स्टेटमेंट को यूज करके मैं अरेंजमेंट निकाल पा रहा हूँ या इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहा हूँ कि हु सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। अगर नहीं तो ये सफिशिएंट नहीं है,
फिर मैं दूसरा वाला चेक करूंगा, अगर ये अकेला सफिशिएंट नहीं है तो फिर इन दोनों को मिलाकर चेक करूंगा, अगर ये फिर भी सफिशिएंट नहीं है, फिर भी मेरे को राइट एंड पे कौन बैठा नहीं पता, then I will select both the statements are not sufficient, which is option D. So these kind of questions, ये क्या है, डेटा सफिशिएंसी अपने में कॉन्सेप्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट अपने में कॉन्सेप्ट है, ये इन दोनों का वेन डायग्राम बन गया, ठीक है. So we have seen questions like this also. इसके अलावा you have questions from syllogisms, यहाँ पे you have all A's are B's, some B's are C's, no D's are E's, some B's are not F's, questions like that. फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है. एन एग्जांपल ऑफ दैट इज हियर. ये जो भी क्वेश्चंस है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स दैट आई हैव ब्रॉट सो फार एंड गोइंग टू शो यू आगे, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, राइट. पजल्स इंडिविजुअल आ रहे हैं, रैंकिंग क्वेश्चंस इंडिविजुअल आ रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल दे आर पोजीशन बेस्ड रैंकिंग, है ना, कि ये फिफ्थ है क्यू से 100 लोगों के बीच में इसका रैंक फिफ्थ आया था, इसका पीछे से 12th आया था, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फिर वो सेट में आए हैं. कोडिंग डिकोडिंग इंडिविजुअल क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्शंस मोस्टली इंडिविजुअल क्वेश्चंस आए हैं, बस एक या दो हमने वेरी लेस सेट बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं. डेटा सफिशिएंसी ऑल इंडिविजुअल क्वेश्चंस, सिलोजिज्म्स ऑल इंडिविजुअल क्वेश्चंस. इंडिविजुअल क्वेश्चंस का क्या सीन है, कंडीशंस पढ़े, आंसर किए, मूव ऑन कर, ज्यादा सोचना नहीं है ना. बट विथ सेट बेस्ड ऐसा है कि पूरा सेट बनाओ और फिर उसको 3 4 5 क्वेश्चंस में आप अप्लाई करो. दैट्स द काइंड ऑफ डिफरेंस देयर. फिर आता है क्रिटिकल रीजनिंग व्हिच फॉल्स अंडर योर वर्बल रीजनिंग, है ना. तो वर्बल रीजनिंग जो है मैं नहीं करूंगा, ऋतु मैम करवाएंगी, ऋतु मैम करवाएंगी इन द वर्बल क्लासेस, ठीक है. बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग जहां पर ये हमसे पूछा है कि कौन सा स्ट्रेंथन कौन सा वीकन कर रहा है, विच स्टेटमेंट, ये जो आर्ग्यूमेंट हमें दिया है इसको कौन सा स्ट्रेंथन कर रहा है और कौन सा वीकन कर रहा है. सो स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, असम्पशन फाइंडिंग, एडिशनल कंक्लूजन फाइंडिंग, कोर्स ऑफ एक्शन फाइंडिंग, प्लान ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन सेम है. ये सारे जो या कॉज एंड इफेक्ट वाला ढूंढना, ये सारे क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है. सो दिस फॉल्स अंडर वर्बल रीजनिंग. देन यहां तक हो गया हमारा लॉजिकल रीजनिंग खत्म. इसके बाद क्या, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. सो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में सारे फिगर बेस्ड पे होते हैं, एवरीथिंग इज फिगर बेस्ड, यू विल हार्डली सी एनी टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट भी है तो भी विद इन अ फिगर ही होगा, राइट. सो ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं, मिसिंग फिगर में कोई एक पार्ट मिसिंग होता है, जैसे ए बी सी डी. क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा. ईच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ 5 फिगर्स मार्क्ड ए बी सी डी ई. यू हैव टू सेलेक्ट अ फिगर from the answer figure that will fit in place of the question mark in the problem set. तो ये problem set है, A B C D में से C मिसिंग है, तीसरा वाला मिसिंग है, तो हमें इन A B C D E में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वहां पर फिट इन करेगा बेस्ड ऑन सम पैटर्न और सम सीक्वेंस. यहाँ पर भी पैटर्न सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वंस यू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न और द सीक्वेंस, फिर आंसर करना बहुत ईजी है. तो ऐसे क्वेश्चंस में द एम हैज टू बी एलिमिनेशन, राइट. ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का एम रहना चाहिए. जितना जल्दी आप एलिमिनेट कर पाओगे, 5 ऑप्शंस है आपके पास, जितना जल्दी आप 4 ऑप्शंस को कुछ एक कारण देके एलिमिनेट कर दोगे, यू विल एंड अप हैविंग दैट वन फाइनल आंसर, राइट. सो दैट्स द मुद्दा हियर, दैट्स द एम एट व्हिच वी शुड वर्क ऑन विद दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. वरना फिर बैठ के अगर आप ड्रॉ करने बैठे अपने पेपर में 25 क्वेश्चन सॉल्व करते, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपके 25 दिन 25 साल निकल जाएंगे अगर आप बैठ के एक एक डब्बा ड्रॉ करोगे. आपको क्या करना है, देखना है, कुछ एक रीजन को लेके ऑप्शन एलिमिनेट करो, जो फाइनल लगा उसको लगा के आगे बढ़ना है. दिस इज मिसिंग. सिमिलर जोन में है नेक्स्ट, राइट. दैट इज in the question given below, one of the answer figures should come after the problem figures given if the sequence were to be continued. तो ये सीक्वेंस है, जैसे ये 1 2 3 4 5 है, तो ये पूछ रहे 6th फिगर कौन सा होगा. ए बी सी डी में से आपको 6th फिगर आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन सम पैटर्न. द सीरीज या जो पैटर्न है या सीक्वेंस है कुड बी बेस्ड ऑन सम रोटेशन, पोजिशनिंग, एडिशन और रिमूवल ऑफ सम एलिमेंट्स, मिरर इमेज, इन सब के बेसिस पर होता है, ठीक है. देन वी हैव एनालॉजीज. एनालॉजी क्या होता है कि जो A is to B का रिलेशन है वही सेम C is to D का रिलेशन. तो सेम थिंग आपका अकर्स इन द फिगर्स आल्सो, कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वही इन दोनों के बीच में है. ये क्वेश्चन मार्क है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कौन सा फिल इन करेगा. द सेकेंड फिगर इन द फर्स्ट यूनिट ऑफ द प्रॉब्लम फिगर्स
bears a certain relationship to the first figure. इन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन है, वही सेम हमें इन दोनों के बीच में आइडेंटिफाई करके निकालना, दैट्स इट. ठीक है, सो ये एनालॉजी हो गया और ये ऑड वन आउट हो गया बेस्ड ऑन सम, अगेन कोई एक रीजन को लेके, कोई एक सिमिलैरिटी को, डिसिमिलैरिटी को लेके हमें ऑड वन आउट ढूंढना होता है कि इसमें से कौन से ऑड हैं, कौन से दो फिगर सिमिलर हैं, कौन सा एक है जो सिमिलर नहीं है. ठीक है, सो दिस इज हाउ योर लॉजिकल रीजनिंग एंड योर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वर्क्स. हमारा एम ये है throughout all the videos that we are going to do on our channel in our paid classes will all revolve around this, right? aim होगा कि आपको conceptually strong बनाए कि कैसा भी question आओ आप उसे आराम से tackle कर पाए. इतना practice करवाए, इतना practice करवाएं कि आपके लिए solving a question like this under 45 seconds should not be a big task at all. Stress, the biggest reason why people leave CET is midway. आधे रास्ते वो छोड़ दे, उठ के तो जा नहीं सकते बाहर, तो आधे रास्ते गिव अप कर देते एग्जाम के दौरान, नहीं हो रहा यार मेरे से, इतना स्ट्रेस में से एक साथ में नहीं लिया जा रहा है. तो सिंपल है, देयर आर अ फ्यू ट्रिक्स, देयर आर अ फ्यू स्ट्रैटेजीज दैट वी आर गोइंग टू टीच यू व्हिच विल मेक श्योर कि आपका जो एम है ऑफ गेटिंग दैट यू नो टॉप स्कोर बिकम्स अ रियलिटी. ठीक है, सो वेयर डू यू डू दिस, कहाँ पे ढूंढोगे आप ये, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स के वीडियोज हो गए, प्रैक्टिस बेस्ड वीडियोस हो गए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम करेंगे धुआंधार मैराथन्स. यस, ये सारे मैराथन्स हम करेंगे आपको टू मेक श्योर कि यू आर रेडी फॉर दैट बिग डे. इतना स्ट्रेन आप पहले से उठा लो कि उस दिन पे आपको ये लगे कि ये तो कुछ भी नहीं. ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर टेक्स्ट बुक MBA पर. ऑन अ डेली बेसिस वी आर अपलोडिंग academic videos, we are uploading strategy videos specific to Maharashtra MBA CET. ऐसा नहीं है कि पूरा ओमेट्स मिलाकर आपको एक कोर्स बेच दिया, पूरा ओमेट्स मिलाकर आपको एक सीरीज पकड़ा दी, नहीं. yes, specific to Maharashtra CET we are doing because what we believe in is CAT is not the end of your MBA journey. CAT के बाद भी इतने सारे एग्जाम्स होते, इतने सारे टॉप 20 स्कूल्स होते that promise you a very colorful, very bright future. yes, so where do you find this? Here, Textbook MBA pe. If you have not subscribed it yet, if you have not started following it yet, please go ahead and do this. This is the playlist that we've already created. We've already started working on basic strategies. We are getting into the zone of academics also. And इसके अलावा if you're looking for a dedicated placer, concept ठीक है, हल्का फुल्का practice ठीक है, previous year questions ठीक है, but what about actual exam level प्रिपरेशन. एग्जाम में क्या करना, क्लास में तो हो जाता है सॉल्व, एग्जाम में नहीं हो पाता, ये कैसे टेस्ट करें. 40+ मॉक टेस्ट डेडिकेटेड फॉर महाराष्ट्र CET, स्पेसिफिकली मेड फॉर अ टेस्ट लाइक CET के CET में आपको कैसा, कौन सा कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना है, कौन सा स्ट्रेटजी कब अप्लाई करना है, टाइम मैनेजमेंट कौन सी स्किल्स कहां पर लगानी है, ऑल दैट यू कैन ट्राई इट देयर. इसके अलावा आपको मिलते हैं 400 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट विल कीप यू ऑन ट्रैक विद योर CET प्रिपरेशन. लाइव क्लासेस इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ. या इसके अलावा आपको मिलेगा चैप्टर वाइज ई बुक्स, जो आपके लिए एक चीट शीट बनेगी, जो आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको एक जगह पर मिलेंगे, which will make it very easy for you to do that last minute revision. या तो ये आपको कहाँ मिलेगा, you will find this in the description, link पड़ा है, where if you use this code core MBA you get this course at 5,999. but if you're looking for a better price or if you're looking for a conversation with our team, तो description में ही number पड़ा है, you can call that number up and tell them that you are coming from this video. इस वीडियो के थ्रू आप आ रहे हैं, they'll do the best they can to accommodate you and any request that you have. I hope this video was helpful for you guys. Do not worry, you've trusted us so far. इतने एग्जाम्स के लिए आपने ट्रस्ट करा है, एक और एग्जाम के लिए I want you to trust on this. Go for it and we will make sure कि आपका जो dream B school है, you reach there. Yeah. So I hope this video helps you guys. All the very best, folks. Cheers.